हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, उसमें दिखाई दे यस रहा सर। था ना। हाँ सर। ठीक है, हम फिर से चला रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। later. Okay, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। generator. Clear? So this is positive and this will be plus and minus. Now this is the R, L, C. Clear? So now C. Then what we have to do? We make the connection. So when we make the connection, now see this is what R. Okay, and this is again R. Clear? So this R is connected to the millimeter. Okay, and that is digital multimeter. So we will consider we will take one digital multimeter. We have to set this multimeter on the milliammeter. Okay, and then we have to set this is on DC current, but we have to set on the AC. So this is the AC. Clear? So then we have to connect. ये देखो, इधर मल्टीमीटर से करंट का वैल्यू ले रहा है। ठीक है। हेलो। यस सर। ओके। यस सर। This positive terminal of the millimeter. This is the positive terminal of the millimeter. Okay, digital multimeter. Clear? So then now next see. This is the negative of the multimeter is goes to positive of the function generator. So this is your positive of the function generator. Okay. Then negative of function generator is goes to capacitor. Okay. So this is the capacitor. So here we will connect. This is capacitor and this is the negative of the capacitor. Clear? This is your complete connection. Now what we have to do, we will take the reading. So how can we take? Now we will increase the frequency. So we will start from the, now see the frequency and see the this current meter. So here you can see, so what is the, slowly we are going to 500 frequency. Now you see the current is start increasing. Okay. So this frequencies we are going to setting in initial frequency we are considering 500. Near about 500. Okay. So this is the 500. So what is the value of current? 0.5. That means 500 hertz. We have the reading is 0.56. Okay, we have, this is in the milliampere. Then we will start 800. We are taking here 300 interval. Okay. So this is 800 hertz. Now current is 800, 0.87. Here then 1100. Now then we have the 1100. Okay, and so current is, it is the 1100, current is 1.11 milliamp. Okay, then 14. Okay, this is near about 1400. So current is, so when frequency is 1400, current is 1.3 milliampere. Then 1700. Okay. Clear? This is near about 1700. So when 700, we have the value of current is 1.45 milliampere. Then we have to consider 2000. Okay. 2000. So frequency is 1.48 milliampere. Clear? So then frequency is, now we are 21. Okay, so 21, so it is 1.48. Now you see here frequency is the, when value of current is constant, now we will consider 22,100. Okay, सर 300 का इंटरवल लेना है. but here, so here see this is the what, 22
0 hertz, 1.46. 1.48. Then now we are considering 250. Okay, 250. Now see the current starts going to decrease. 1 point. This is also 148. Okay, now here the current going to start decrease. Okay, now see the current start going decrease. Clear? When it's 23,000. 0.5. So current is 144 milliampere. Clear? Then next 260. Okay, next we will consider 300 interval. So this is 2600. So frequency is 140. 1.4. Okay, 1.4 milliampere. So then we will collect 2900. 29. Okay, this is near about 290. So current is what? 1.35 milliampere. Then we are going to 32, na? So this is current is what? 1.32 milliampere. 3.2 milliampere. Then now see the range is finished. So we have to convert into the kilohertz. So then we have to start from 3.2. Okay, so we have to start again it from 3.2 because we have taken reading 1, 2. Okay, this is 3.2. So then 3.5. So it's 3.5. We have that 1.24 milliampere. Okay, then 3.8. So we have the value of current is 1.19 milliampere. Then 4.10. Okay, so current is 1.14 milliampere. Then 4.4. Current is 1.08 milliampere. Now 4.7. Current is 1.0605 milliampere. Then 5. Current is 1.01 milliampere. Then 5.3. Current is 0.97 milliampere. Then 5.3. 5.6. 5.6 current is 0.93 milliampere. Then 5.9 current is 0.91 milliampere. Then 6.10 kilohertz. So current is 0.89 milliampere. Now 6.4 kilohertz. Current is 0.86 milliampere. Okay, and 6.8. Current is 0.81 milliampere. So this it's enough reading for that thing. Now you see. So we have start from the 500. So current is what? 0.56 milliampere. Then 800 it is 0.87. So see the current is when we increasing the frequency. So current is also increasing. At this frequency, after this frequency you can see this current is going the constants. Okay, that means after this frequency the current starts going to down. Okay, decrease. That means current is decreasing. Clear? So we can say this is our near about resonant frequency. That means what? This is our resonant frequency. That means this will be near about the 250 or maybe 2300. Clear? So this is called as a resonant. At this frequency you will get the maximum current. So what is the maximum current? 1.48 milliampere. So this is our maximum. So this practically is called as series RLC resonant circuit. Stop. Hello.
Yes, sir. Yes, sir. প্রতিভা ঝুলছে। हेलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. आवाज आ रहा है। हाँ, Yes. समझे पूरा क्लियर, हम जो बोले वही क्लियरली सबको कैसे पूरा तो ग्राफ ड्रॉ करना है, एवरीथिंग पूरा उधर से कैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे तुम लोगों का मैक्सिमम करंट पूरा दिखा है ना सब कुछ। यस सर। सर इसमें मतलब करंट दिखाया गया कि मतलब 3 फ्रीक्वेंसी रेंज दिखाया गया, वैसा उसमें कुछ नहीं है, करंट वैसा कुछ नहीं, तो वैसा उसको रीडिंग में आया है, वैसा कुछ नहीं है। 3 फ्रीक्वेंसी वैसे लगभग चेंजेस में वो लगभग थोड़ा सेम रहा है, लेकिन ऐसे चेंजेस आ जाता है, ठीक है। वैसे उसका मतलब प्रोसीड्यूर तुम लोग देख लिए ना, यस सर। उसमें से तुम लोग को नहीं करना है, तुम लोग ग्राफ से उसमें वो जो रीडिंग मिला है ना, जो रीडिंग टेबल है उसमें से हम लोगों को निकालना नहीं है, एक्चुअल ग्राफ से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना है और मैक्सिमम करंट निकालना है, ठीक है। वो यस सर। रीडिंग टेबल सर ओनली है ग्राफ पॉइंट आउट करने के लिए। ग्राफ रीडिंग टेबल से रीडिंग जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो जो पॉइंट आउट किए हो उसमें से ग्राफ में पॉइंट आउट कर देना, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उधर से तुम लोग उधर से तुम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और मैक्स और करंट मैक्सिमम करंट का वैल्यू निकालना है। और थियोरेटिकल तो तुम लोगों को पता ही है। समझ में आया क्या बोले? यस सर, समझ में आया सर। लेकिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मतलब ग्राफ भी दिखाएगा, वो तो आपका डिजिटल शो कर रहा है कि कितना फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो ग्राफ ग्राफ दिखाएगा में मतलब समझ में नहीं आया, बोलो। नहीं सर। जैसे नॉब हम घुमा रहे हैं ना, तो मल्टीमीटर पे तो हम लोग ये मेजर कर लिए डिजिटली कि कितना करंट आ रहा है। वो ग्राफ शो करने के लिए सर वो हाँ मतलब ऑब्वियसली है, मैनुअली ग्राफ शो करने के लिए क्या है बोलो, वही पूछ रहे हैं सर, मतलब वो क्या मैनुअली ही डिवाइस करना क्या पड़ता है? है। ग्राफ हम लोग ग्राफ देखने के लिए क्या डिवाइस यूज करते हैं बोलो, सब दिखाएंगे, कॉलेज में है। हम तुम मालूम आ जाओ ना, सब दिखाएंगे। उसको क्या बोलते हैं बोलो? कोई भी हम लोग मतलब ये दिखने के लिए मतलब वेब फ्रॉम देखने के लिए क्या क्या डिवाइस यूज होता है? कौन सा डिवाइस, उसका नाम क्या है? सर शायद सिस्मोग्राफ करके कुछ है, वो जो CRO, CRO। कैथोड रे ओसिलोस्कोप। वो तो पुराना है, उसका डिजिटल वर्जन एक आया है। उसमें CRO था पुराना वर्जन, पुराना वर्जन मतलब उसका स्क्रीन था नॉर्मल स्क्रीन, मतलब डिजिटल स्क्रीन नहीं था। उसके ऊपर तुम लोगों को मतलब ट्रेसिंग पेपर, पतला पेपर लेके उसके ऊपर ड्रॉ करके तुम लोगों को ग्राफ मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी डिजिटल आ गया है। यस सर। अभी डिजिटल उसको बोलते हैं DSO, ठीक है। सेम चीज है, क्या है, डिजिटल फॉर्मेट है। उसका उसका स्क्रीन है डिजिटल, जैसे ऐसे डिजिटल स्क्रीन है, डिजिटल क्या मतलब डिजिटल है DSO, ठीक है। तो उसमें हम लोग डायरेक्ट उसमें सेव कर का ऑप्शन है। सपोज जो तुम लोग का जो ग्राफ आएगा ना, उसको डायरेक्ट तुम सेव कर सकते हो, उसमें पेन ड्राइव में ले सकते हो, वो भी सब है। क्या CRO भी है हम लोग का कॉलेज में और DSO भी है। ये हम लोग उसका आउटपुट जो है ना, वो आउटपुट जो हम लोग आउटपुट मिलता है ना सर्किट का, उसको हम लोग CRO में या DSO में पुट कर देते तो वो वाला ग्राफ आ जाता, ठीक है। कुछ नहीं है। यस सीआरओ और DSO ऑन करके उसका ये जो सर्किट का आउटपुट है, आउटपुट निकाल के उसमें दे देने से उसमें ग्राफ आ जाएगा। ये भी हम लोग दिखाएंगे, सब एवरीथिंग है हम लोग के पास। सर। लेकिन कॉलेज ही नहीं खुल रहा ना सर, कॉलेज खुलता तब तो मतलब हम नेक्स्ट दिन तुम लोगों को ये डिजिटल और CRO और DSO का हम लोग डिजिटली दिखाएंगे और वर्चुअल लैब में भी दिखाएंगे। वर्चुअल लैब में DSO कैसे मतलब कैसे ग्राफ आता है वो भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। कॉलेज खुलने दो, क्या करोगे। हम पूरा हम एक डिजिटल CRO और DSO का ऐसे ग्राफ कैसे आता है सब वीडियो करके हम दिखाएंगे नेक्स्ट दिन, ओके। ओके सर। ओके इजी स्टूडेंट, सॉरी फॉर कुछ नहीं कि हम मेरे पास तुम लोगों का ग्रुप का हम लोगों का इंफॉर्मेशन नहीं था। हमको पता है तुम लोगों का नेटवर्क थ्योरी लैब है, लेकिन तुम लोगों का कौन सा ग्रुप में तुम लोग हो,
तो हम शेयर नहीं कर पाए, मेरे पास ग्रुप नहीं था, तो हम लोग जल्दी में हम ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप तो मेरे था, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल से है, तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप में शेयर कर दिए। तो नेक्स्ट हम ही ग्रुप का हम ही सर से इन्फॉर्म पता करके हम तुम लोग का ग्रुप भी मिल गया पिनाकी सर से। और नेक्स्ट दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट दिन भी हम लोग तुम लोग के लिए भी एक दिन हम लोग करेंगे, फिर से सबको फिर दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और नेक्स्ट दिन से तो एक साथ ही होगा, तुम लोग का ग्रुप भी मिल गया है मेरे को, और उसमें भी हम लोग शेयर करेंगे, एक साथ ही लैब होगा। नेक्स्ट दिन से तुम लोग को भी जो मैं लैब का मतलब जूम क्लास का लिंक मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सॉरी फॉर टुडे। ये जो आज जो हुआ ये हम नेक्स्ट दिन तुम लोग को भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक साथ फिर करा देंगे। और एक साथ इसका एक एक्सपेरिमेंट है, इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट है एक व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कर्व, ये जो हम लोग ग्राफ आज ड्रॉ किए अमन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कर्व। समझ में आया? यस सर, ये वाला तो समझ में आया। हाँ, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कर्व। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कर्व है, ये जो कर्व देखे तुम लोग पहाड़ के जैसा जो भी है, नैरोअर ग्राफ है, तो इसमें इस ग्राफ में क्या इफेक्ट है रेजोनेंस मतलब रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है, रेजिस्टेंस चेंज करने से क्या चेंजेस आएगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट है एक। और ये दोनों एक साथ नेक्स्ट दिन हम लोग दोनों एक साथ, आज का भी फिर इसी तुम लोग को फिर से बताएंगे आज का, और क्योंकि इसी स्टूडेंट थोड़ा मिस कर गया तो फिर से नेक्स्ट दिन, और वो जो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों एक साथ नेक्स्ट दिन एक साथ कंबाइन करके फिर से एक ही, वो दोनों का थ्योरी एक ही है, और फिर से एक बार रिपीट करके थोड़ा एक्स्ट्रा अलग है वो रेजिस्टेंस का, थोड़ा एक करके हम लोग फिर से नेक्स्ट दिन हम लोग कंबाइन करके एक साथ बताएंगे। ओके ओके सर। और उसके बाद तुम लोग ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ करना, 2 ग्राफ, और जो जो लिखना है नेक्स्ट दिन हम लोग पूरा 2 एक्सपेरिमेंट का 1-2 एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट दिन होने के बाद तुम लोग लिख के सबमिट करना गूगल क्लासरूम में। हम आज या कल में गूगल क्लासरूम का लिंक तुम लोगों को दे देंगे। ओके ओके सर। ओके ओके इसी स्टूडेंट समझ में आया ना तुम लोग को क्या बोले हम? आज समझ में नहीं आया होगा, हम नेक्स्ट दिन तुम लोगों को एक साथ जब होगा दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ ही होगा। ओके क्लियर है ना? जवाब दो कोई। हाँ यस सर। सर। ओके ओके सत्यम कुमार। ओके ओके तो आज के लिए हम क्लास का एंड करते हैं। ओके तुम लोग लिव हो जाओ, और एक है सॉरी एक रजिस्टर एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी का, मतलब एक अमन कुमार, अमन यस सर। तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का। यस सर, ले रहे सर। लेके मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, हेलो अमन। सर स्क्रीनशॉट ले रहे थे सर। व्हाट्सएप नंबर सर वो आप मैसेज किए थे वही वाला ना, ग्रुप वाला जो था? हाँ सेम है सेम। ठीक है सर, हम कर देंगे। हमको पर्सनली उसको डेट देके, क्लास नेम देके, आज का डेट देके उसको शेयर करना, मतलब हमको देना, उसमें डेट लिखोगे नेटवर्क थ्योरी लैब आज का डेट का, फिर उसको हमको मैं भेजना। ओके ठीक है सर। ओके थैंक यू टू ऑल। हम अब लिव हो जाओ। थैंक यू सर।